Hello friends, this is 8th class on accounting equation and hope you have gone through all the other classes. You have seen the questions which have been given at the first. So please keep in touch with the questions so that you will understand better, right? So let us start with the problem. This problem is little bit wrong and of little bit bigger size so that you will understand lot of adjustments. Let us now come to the accounting equation. This is assets is equal to liability plus capital. This is the basic accounting equation here, and this is serial number, cash, bank, building and furniture I have taken in one place. You can alternatively take building separately, furniture separately, and debtor means it is customer, equal, this is total, then equal to non-trade creditor, trade creditor, capital, total. Non-trade creditor means those creditor which are not the creditor in a normal way of raw material purchase, finished goods purchase. जब मैं फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल परचेस करते हैं कोई सप्लायर से, तब ये ट्रेड क्रेडिटर होता है. अगर मैं कोई एसेट परचेस करते हैं सप्लायर से, तब नॉन ट्रेड क्रेडिटर. आउटस्टैंडिंग वेजेस, that is liability, that is also non-trade creditor. So in this way we can arrange the accounting equation. Let us come to the question first. Serial number 1. This is Wasit started business with cash 1 lakh, goods 30,000, furniture 10,000. So friends, we have to take a stock here. Let us take this as stock, and another one is your debtor. So this is stock and this is your debtor. So let us start with Wasit started business with cash 1 lakh, stock 30,000 and furniture 10,000. So when Wasit is starting business with cash, so cash is coming, आपका कैश बैलेंस बिजनेस का ज्यादा हो जाता है. सो कैश में लिखते हैं 1 लाख, राइट. और नेक्स्ट इज योर गुड्स 30,000. Wasit is bringing 30,000 of goods to the business. So it is also a capital, क्योंकि कोई प्रोप्राइटर कैश, गुड्स, एसेट कुछ भी लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब उसको बोलते हैं दिस इज योर कैपिटल. सो कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, इन द फॉर्म ऑफ एसेट, इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर कंट्रीब्यूशन बाय ओनर. सो ओनर जो कंट्रीब्यूट करेगा वही होगा कैपिटल. सो कैश कंट्रीब्यूशन, एंड ही हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड स्टॉक, दैट इज गुड्स मींस दिस इज स्टॉक 30,000. सो अनदर वन ही हैज कंट्रीब्यूटेड इज फर्नीचर 10,000. सो हियर आल्सो it is 10,000. And this cash,
फर्नीचर स्टॉक, ये जो होता है दिस इज टोटल कम्स टू 1,40,000 and capital is also 1,40,000, total 1,40,000. This is the first adjustment. Started business with cash, furniture, goods. Goods means stock, that is maybe raw material goods, maybe ट्रेडिंग गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स होता है। टोटल मिला के आपका 1,40,000 और कैपिटल इज 1,40,000। सो अगर में टोटल करेंगे, एक टोटल होता है दिस इज योर 1,00,000, दिस इज 10,000, दिस इज 30,000, this is 1,40,000, this is your 1,40,000 and 1,40,000. So after each transaction we have to make a total here. Opened a bank account, second adjustment 2. Opened a bank account by depositing rupees 25,000 out of cash. जो कैश मेरा था 1,00,000, इससे 25,000 लेकर के मैं बैंक में जमा कर दिया। कैश बॉक्स का, बिजनेस का कैश बॉक्स में 1,00,000 था, इससे 25,000 निकाल के मैं बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक का बैलेंस आपका ज्यादा हो जाएगा और कैश का बैलेंस विल रिड्यूस बाय 25,000। सो बैंक का बैलेंस विल इंक्रीज 25,000 and cash balance will decrease by 25,000. Here bank will increase, cash will decrease. So bank increase, cash decrease. Therefore आपका दूसरा कहां भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा। So total will be of the total will be 75,000 cash, 25,000 bank, 10,000 furniture, 30,000 stock, total 1,40,000. This is again 1,40,000, 1,40,000 total. Then comes the third adjustment. Third adjustment में बोलता है he sold his personal car for rupees 40,000, deposited the amount in the firm's bank account. उनका पर्सनल कार 40,000 में सेल कर दिए और जो पैसा आया वो बैंक में जमा कर दिए। सोच लीजिए, जो प्रोप्राइटर का पर्सनल कार सेल करके जो पैसा आता है, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि प्राइवेट ओनर पर्सनल रिसोर्स से पैसा देते हैं बिजनेस को। सो ओनर जब पैसा बिजनेस को देते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल, राइट। सो पर्सनल कार सेल करके, पर्सनल बिल्डिंग सेल करके अगर कोई प्रोप्राइटर का पैसा ले आते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल। सो दैट मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो हाउ मच अमाउंट इज हियर 40,000। सो आपका बैंक का बैलेंस विल इंक्रीज बाय 40,000 और आपका ये कैपिटल आपका ये भी 40,000 इंक्रीज करेगा और कैपिटल आपका हो जाएगा
40,000 इंक्रीज करेगा, ये भी 40,000 इंक्रीज करेगा, इसमें 40,000 इंक्रीज करेगा. सो टोटल विल बी, आपका ये टोटल हो जाएगा 75,000. दिस इज 65,000. दिस इज योर बैंक. फर्नीचर 10,000. दिस इज 30,000. दिस इज 1,80,000. This is your 1,80,000. This is 1,80,000. So this is your third adjustment. Let us go to fourth adjustment. So 1,80,000. Fourth adjustment, he purchased a building for 60,000. फ्रेंड 60,000 में एक बिल्डिंग परचेस कर लिया. जो 60,000 में बिल्डिंग परचेस कर लेते हैं वो आपका बिल्डिंग आएगा और मनी कैश इज गोइंग आउट. इधर ये नहीं बोला है कि पेमेंट बैंक से किया है. अगर कुछ नहीं बोलता है तो अब सोचना है कि पेमेंट हैज बीन मेड फ्रॉम कैश. व्हेन द प्रॉब्लम इज साइलेंट, द मोड ऑफ द पेमेंट, देन वी हैव टू थिंक that the payment has been made in the form of cash. So building का value 60,000. So building में आपका आएगा 60,000 प्लस हो जाएगा और कैश से माइनस हो जाएगा 60,000. These will remain same. So total comes to 15,000. This is 15,000, 65,000, and this is yours 70,000. $30,000, 1,80,000. This is again 1,80,000. This is also 1,80,000. Then comes the fifth adjustment. Fifth adjustment में बोलता है he purchased goods from श्याम on credit. श्याम से उधार में, क्रेडिट में गुड्स परचेस किया. कितना? 50,000. सो स्टॉक, जो गुड्स परचेस होता है आपका स्टॉक विल इंक्रीज बाय 50,000. और जो गुड्स परचेस करते हैं दीज आर ट्रेडिंग गुड्स, इसलिए उधार से परचेस करते हैं तो ट्रेड क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय 50,000. सो आपका जो गुड्स उधार में परचेस करते हैं तो ये आपका लायबिलिटी बढ़ेगा और आपका स्टॉक भी बढ़ेगा. सो आपका स्टॉक विल इंक्रीज बाय 50,000 और ट्रेड क्रेडिटर विल इंक्रीज बाय 50,000. सो टोटल में 50,000. नाउ अब टोटल कर लेते हैं. फिफ्थ एडजस्टमेंट का बाद टोटल ये 15,000, 65,000, 70,000, ये 80,000, ये आपका 2,30,000. दिस इज 50,000. This is 1,80,000.
This is 2,30,000. Now adjustment number 6. Let us come to adjustment number 6. He paid cartage 600. He paid cartage 600. Cartage means freight के लिए. सो कैरी करने के, गुड्स कैरी करने के लिए जो एक्सपेंडिचर उसको बोलते हैं कार्टेज. सो कार्टेज इज एन एक्सपेंडिचर. अगर एक्सपेंडिचर होता है तो आपका कैपिटल घटेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज ए नेगेटिव टू प्रॉफिट. इसलिए प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर होने से आपका कैपिटल डिक्रीज. So capital will increase on profit, capital will decrease on expenses, right? Similarly, 500 rupees he paid cartage. ये नहीं बोला है कि बैंक से पेमेंट किया इसलिए मैं सोचेंगे कि दिस इज ए कैश पेमेंट 500 एंड this is a cash payment 500 and capital will also decrease by 500. Now the cash balance after fifth adjustment is 14,500. 14,500. This is 65,000. This is 70,000. This is 80,000. This is your 2,29,500. 2,29,500. Here also 50,000, 179,500, 229,500. So after this sixth adjustment, we will come to the seventh adjustment. He paid cartage 600 था. This is 600. So it will be 14,400. This will be 600 and this is 2,29,400 and this is your 600. This is 600. Cartage was 600. This is also 400, right? So cartage was 600. It was not 500. It was 600 in the question. So cash में आपका 600 reduce and आपका capital 2,29,400 total of the asset side. एंड कैपिटल से भी आपका 600 लेस हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपेंडिचर है. सो इट विल बी 179,400. टोटल विल बी 2,29,400. नाउ वी विल गो फॉर द सेवेंथ एडजस्टमेंट. ही सोल्ड टू लक्ष्मण ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000. दिस इज योर सेवेंथ एडजस्टमेंट. दिस इज ए वेरी गुड एडजस्टमेंट. वो क्रेडिट सेल किया, 5,000 का गुड्स को 9,000 में सेल कर दिया. देयरफॉर देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 4,000. सो 5,000 का जो गुड्स जिसका कॉस्ट 5,000 उसको 9,000 में सेल कर दिया तो प्रॉफिट आपका 4,000. फ्रेंड्स प्रॉफिट अगर होगा तो कैपिटल बढ़ेगा और
स्टॉक से 5000 लेस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक तो कॉस्ट में होता है, इसलिए जो गुड्स है उसका वैल्यू आपका 5000, और वो क्रेडिट में सेल किया, कैश में सेल नहीं किया। अगर कैश में सेल होगा तब कैश बढ़ेगा, क्रेडिट में सेल करने से कस्टमर से पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं डेटर। सो फ्रेंड्स, मेरा ये स्टॉक जो है, स्टॉक से 5000 माइनस, स्टॉक से 5000 माइनस होगा, डेटर आपका 9000 प्लस होगा, दिस विल बी 2,33,400 टोटल। ये 5000 लेस, डेटर आपका 9000 बढ़ेगा, राइट। इधर कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि वो क्रेडिट सेल, एंड द कैपिटल विल इंक्रीज बाय 4000, जो प्रॉफिट 9000 सेल प्राइस, आपका 5000 कॉस्ट, सो 4000 प्रॉफिट, सो इधर भी 4000 आपका आएगा। सो टोटल ये आपका 4000 increase. Now we will make a total of this after the sixth adjustment: 14,400, 65,000, 70,000. This is 75,000 is your stock. Debtor will be 9,000, जो कस्टमर से पैसा मिलेगा, राइट। $2,33,400 total. Similarly, here also 50,000 your trade creditor, and 1,83,400 is your capital. Total comes to 2,33,400. So after this is 8th adjustment. एडजस्टमेंट नंबर 8 बोलता है आपका रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनर टू 1,500। जब रेंट रिसीव करते हैं तो कैश विल इंक्रीज, क्योंकि आपको पैसा मिलता है, कैश में मिलता है, चेक में तो नहीं मिला है। अगर चेक में मिलेगा तो बैंक इंक्रीज, सो कैश विल इंक्रीज बाय 1,500. This is plus, and capital will increase because rent is a income. जिस तरह फ्रेट देने से कैपिटल डिक्रीज, रेंट मिलने से इनकम कैपिटल विल इंक्रीज, सो नथिंग विल बी चेंज्ड हियर। 1,500 ये आपका प्लस हो जाएगा, and here capital will increase by 1,500, right? So this is after this 8th adjustment, cash will be 15,900, 65,000, 70,000 is your asset, stock 75,000, debtor 9,000, and this is 2,34,900. This is again 50,000 creditor, this is 1,84,900, 2,34,900, right?
Now let us go to, let me check. Let us go to adjustment number 9. That is your received security deposit from tenant. मैं टेनेंट से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, ये रेंट नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस देना है, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी से भी लेते हैं वो आपका लायबिलिटी होता है। सो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट ये था, 2500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट। एडजस्टमेंट नंबर 9। सो 2500 चेक में नहीं मिला है, ये तो नहीं बोला है कि चेक, सो आपको कैश में 2500 मिला है, इसलिए 2500 को मैं इधर प्लस कर दिए कैश में। और ये आपका लायबिलिटी, जब टेनेंट बोलेगा आपको रिटर्न करना है ये पैसा, इसलिए दिस इज ए लायबिलिटी, देयरफॉर इट इज ए नॉन ट्रेड क्रेडिटर में आपको 2500 ऐड करना है, नॉन ट्रेड क्रेडिटर। ये दूसरा कहां नहीं आएगा, कैश में और नॉन ट्रेड क्रेडिटर, क्योंकि रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट ये बाद में आपको वापस देना है, इसलिए द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ए क्रेडिटर, इट इज ए लायबिलिटी, इट इज ए नॉन ट्रेड क्रेडिटर। So after this adjustment number 9, it will be cash will be 18,400, 65,000 is your bank, 70,000 is your asset, stock 75,000, debtor 9,000, and this total will be 237,400. This will be 2,500, this is 50,000, this is 184,900, total 237,400. Now comes the adjustment number 10. This adjustment number 10 purchase stationery for cash. So stationery जब परचेस करते हैं ये मेरा एक्सपेंडिचर होता है। In case of expenditure the capital will decrease and cash will decrease because it is a cash expenses. So 100 रुपीज इधर से आपका माइनस हो जाएगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा, ये भी आपका चेंज नहीं है, इसमें आपका -100 और ये कुछ चेंज नहीं है, इसमें आपका -100, ये भी आपका -100. सो टोटल कमिंग टू योर 18,300, this is 65,000, this is 70,000, this is 75,000, this is 9,000, this is 237,300, and this is 2,500, 50,000, 184,800, this is
237,300. Now adjustment number 10. In case of adjustment 10, invested in shares personal 40,000. बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पर्सनल 40,000. ये कोई बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है. अगर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट रहेगा, पर्सनल वर्ड नहीं रहेगा. अगर पर्सनल वर्ड नहीं रहेगा इसी प्रॉब्लम में, तब आपका एक इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगा 40,000 और कैश से 40,000 आपका निकल जाएगा या बैंक से निकल जाएगा 40,000. इधर पर्सनल वर्ड बोल दिया, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस. तब क्या करना है ना, प्रोप्राइटर अपना बिजनेस से 40,000 लेके पर्सनल इन्वेस्टमेंट में 40,000 रख दिया, जो कि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है. उसका मतलब जो प्रोप्राइटर हैज टेकन मनी एज ए ड्रॉइंग्स फ्रॉम द बिजनेस. प्रोप्राइटर जब पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस को, बोलते हैं कैपिटल. व्हेन प्रोप्राइटर इज टेकिंग मनी फ्रॉम द बिजनेस, तब होता है ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स इज ए negative of capital. So capital will decrease by 40,000 as a drawings. And generally investment आपका कैश से नहीं होता है, चेक देना पड़ते हैं. Therefore in a normal case, in case of investment आपका बैंक से पैसा निकलेगा, कैश से नहीं. राइट? सो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में आपका कैश में कुछ नहीं, 40,000 will reduce from the bank. $40,000 will reduce from the bank. कैपिटल से आपका 40,000 will reduce. इधर भी आपका 40,000 reduce. So after this 11th adjustment, cash will be 18,300. Bank will be only 25,000. 70,000 is your assets. 75,000 is your stock. Debtor is 9,000, and this will be $197,300. This is 2,500. This is 50,000. This is 1,44,800. This is 197,300. So after this 11th adjustment आपका ये हो गया. नेक्स्ट इज योर रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश. जब आपको इंटरेस्ट मिलता है कैश में, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश 200. सो 200 रुपया आपको कैश में मिलता है, ये आपका इनकम. इंटरेस्ट इज योर इनकम. सो जब इनकम होता है कैश में मिलता है, तो आपका एडजस्टमेंट नंबर 12, कैश में आपका कैश विल इंक्रीज बाय 200 एंड
your total will also increase by 200. Capital will increase by 200 क्योंकि interest is a income here, right? So after this 11th adjustment, it will be 18,500. Cash bank will be 25,000. 70,000 is your asset. 75,000 is your 75,000 is your stock. 9,000 is your debtor, and this will be 1,97,500. 2,500, 50,000, 1,45,000, and this will be 197,500. 197,500. So let us start with your adjustment number 13. Let us start. Introduced fresh capital. जब फ्रेश कैपिटल आता है, ये तो आपको पता है कि कैश विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल इंक्रीज बाय 25,000. सो फ्रेश कैपिटल, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 13. सो कैश विल इंक्रीज बाय 25,000. ये 25,000 आपका इंक्रीज होगा, and capital will increase by 25,000. So after this 13 adjustment, ये आपका 43,500, cash 25,000, 70,000, 75,000, 9,000, and this will be 2,22,500. This is 2,500, 50,000. This is your 1,70,000, and total will be 2,22,500. This is a little bit long problem, and I am sure after doing this problem your most of the doubts will be clear, and this is, if any question will be coming or adjustment will be coming, then definitely you will be in a position to answer that. So introduce fresh capital, वो 13th adjustment हो गया. Now we will be doing the 14th adjustment. 14th adjustment में goods destroyed by fire 500. जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है ये आपका स्टॉक से निकल जाएगा 500, क्योंकि गुड्स तो स्टॉक में होता है, और जब फायर हो गया तब 500 रुपीज आपका लॉस हो गया, एंड लॉस ऑल्सो कैपिटल से भी निकल जाएगा. सो योर स्टॉक विल रिड्यूस
by 500. Capital will reduce by 500. So टोटल में भी आपका 500 माइनस हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा कहाँ चेंज नहीं है, इधर से भी 500 आपका माइनस हो जाएगा टोटल से। सो आफ्टर दिस 14th adjustment, cash will be 43,500, bank will be 25,000, asset will be 70,000, 74,500 will be stock, 9,000 is your debtor, and this is 2,22,000. 2,500 non-trade creditor, trade creditor 50,000. This is 169,500. 2,22,000 will be total. Now comes the last adjustment. This is your 15th adjustment. Goods sold to Kasim, rupees 20,000 at 10% trade discount, cost 16,000. उसका बारे में मैं आपको थोड़ा बोल देते हैं। Goods sold to Karim, that is on credit sale. आपका 20,000, मान लीजिए कि आप कहाँ गए हैं, कोई शॉपिंग मॉल से, उस शॉपिंग मॉल में लिखा है कि एक शर्ट का प्राइस है 1,000, 10% डिस्काउंट, आपको जो बिल बनाएगा 1,000 से 10% लेस करके 900 का बिल बनेगा। सो ट्रेड डिस्काउंट जब बिल होता है आपका लेस करके ही बिल बनता है। सो ट्रेड डिस्काउंट 20,000 आपका एमआरपी था, उससे ये आपका रिटेल प्राइस था, उससे 10% आपका 10% लेस हो जाएगा डिस्काउंट, तो आपका सेल प्राइस होगा 18,000। जो आप कस्टमर से चार्ज करेंगे दिस इज 18,000 नॉट 20,000। जहां भी आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू से लेस करके ही आता है। सो इधर सेल प्राइस आपका एमआरपी में 20,000, बट ये ऑफर था कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए सेल प्राइस इज 18,000, बट ये जो गुड्स है उसका कॉस्ट 16,000। So profit is only 2,000 is the profit. So how to record that? Now the goods are sold to Kasim. So नाम दिया है, इसलिए आपको सोचना है कि दिस इज ए क्रेडिट सेल, उधार में सेल करते हैं कस्टमर डेटर। सो डेटर से हमको कितना मिलेगा 18,000 आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम द डेटर, और मेरा स्टॉक से निकल जाएगा आपका 16,000, क्योंकि गुड्स का जो वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज 16,000, इसलिए आपका गोडाउन से निकलेगा 16,000 का सामान, आपको कस्टमर से मिलेगा 18,000। जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 2,000। Now after this last adjustment, the balance will be cash 43,500, 25,000 is your bank, 70,000 is your asset, $58,500 is your stock,
debtor will be 27,000 and ये आपका 2000 ज्यादा होगा, 2,24,000 टोटल, ये भी आपका 2,500, 50,000, this will be 171,500, so total 2,24,000. Let us check it. So friends, this is your left hand side is equal to right hand side, so the problem is finished. If you like the video, please subscribe and offer your comments. We are going to coming to the next class. In the next class, we shall explain you how the GST transaction से कैसे आपका accounting equation होगा. So we will take up a simple problem on GST, that is CGST, SGST, IGST, और प्रॉब्लम करेंगे GST लेकर के कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन होता है. राइट, थैंक यू.